क्लियर हो गया। लेकिन अभी आप कहेंगे मैं एग्जाम में क्या मार्क करके आऊँ यार, ये तो बहुत में रामलीला चल रही है यहाँ पे, राम कहानी चल रही है। रुके रुके, वो कह रहे वो हिंदुस्तानी भाव वाली नहीं, मतलब थोड़ा रुको रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा जरा क्लियर करें कॉन्सेप्ट। कानून इतना आसान नमस्ते जी, होता। नमस्ते। So continuing on from the previous lecture of right to vote, whether it being a statutory right or a constitutional right, we have now reached the right to property. If you haven't checked out that lecture, please do so that it brings you some clarity. Now, chapter 4 of, I believe, part 12, if I'm not mistaken, of the Constitution, right to property says, Article 300A, persons not to be deprived of property save by authority of law. So in this lecture, we won't be going into the length, breadth, the history, geography of right to property, because then we have to trace out the history from 1901F to 31 to eventually 300A and a lot of amendments and a lot of case laws. We are just going to be focusing on the question that which kind of a right is it? And it's quite a simple answer any which way. Now understand the funda. Article 300A is giving you the right to property. Now, it's certainly not under Part 3. Part 3 contains fundamental rights, because if this right were placed there, as soon as it is infringed upon, you will be able to approach the Supreme Court under a writ under Article 32, filed under Article 32, that is. Since the Constitution is giving you this right, it becomes a constitutional right. If it were placed in part 3 of the Constitution, that is fundamental rights, it would have been both a constitutional right and a fundamental right. लेकिन भैया ये हमारे जो हैं पार्ट 3 में नहीं है, अब ओमिट कर दिए गए हैं वहां से। तो अब क्या बन गए हैं ये, क्या बन गए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अभी के लिए, अभी के लिए। अभी डिस्कशन बहुत लंबी है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। Now the Constitution 44th Amendment Act के statements of objects and reasons की हर बेसिकली जब ये एक्ट पास हुई होगी तो उसमें बिल में ये आता है कि जी हम ये अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं। अब जरा वहाँ पढ़ते हैं और फिर वहाँ से कन्फ्यूजन ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये लीगल राइट भैया हमारे जो ऑप्शन है ये पैदा ही कहाँ से हो रहे हैं। बिकॉज वॉट इज अ लीगल राइट? लीगल राइट और अ स्टैट्यूटरी राइट इज विच अ स्टैट्यूट गिव्स यू। Now, it's not a contradiction that the same right can be given to you by the Constitution, and then the right can be framed out and given shape by a statute. So, for example, the Protection of Human Rights Act now establishes the NHRC. The NHRC is not a constitutional body. Now, constitutional body as in it doesn't find mention in the Constitution, neither does Niti Aayog. Niti Aayog is an extra constitutional body. NHRC is a statutory body because the statute, the Protection of Human Rights Act, I believe 1993, tells you that there is going to be an NHRC. Similarly, Article 280 of the Constitution tells you that there is going to be compulsorily a finance commission, therefore making the finance commission a constitutional body. Similar funda to rights. Same funda है। स्टैट्यूट बता रहा है कि आपके पास ये राइट है तो स्टैट्यूटरी राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन बता रही है कि अगर आपके पास ये राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पार्ट 3 में पटक दिया तो वो फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है जी। इसके ऊपर हमने एक और लेक्चर कभी एक किया था, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड बॉडीज के ऊपर। बेसिकली देयर इज अ लेक्चर ऑन दिस चैनल। नाउ लीगल राइट आया कहाँ से? इन व्यू ऑफ द स्पेशल पोजीशन sought to be given to the fundamental rights, the right to property which has been the occasion for more than one amendment of the constitution. So basically सरकार was like भैया ये केस लॉज ही बंद करो, would cease to be a fundamental right, become only a legal right. ये एक लाइन ने सर में दर्द कर दिया सबके कि भाई साहब तो लीगल राइट है, इट इज अ मेयर लीगल राइट। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफिशियल ऑफ द 44th अमेंडमेंट ही कह रहे हैं दैट इट्स अ लीगल राइट, इट वुड सीज टू बी अ फंडामेंटल। नाउ माइंड यू दे नेवर सेड एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो लिख रहा था कि भैया थोड़ा सा यहाँ सरल कर देता तो हमें लेक्चर नहीं बनाना पड़ता और इतनी सारी जनता कन्फ्यूजन में नहीं रहती। Now we trace out what the Supreme Court has. जब भी confusion हो, so we trace out what the Supreme Court has been saying. तो लेकिन जब भी confusion हो, now resuming my sentence, जब भी आपको confusion हो, ऐसे क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट बिठा क्यों रखा है? इन्हीं काम के लिए तो बिठा रखा है कि भैया तुम ही बताओ, हमें कंफ्यूजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्वियसली एकेडमिक कंफ्यूजन नहीं, रियल लाइफ कंफ्यूजन होगी केस लॉज में कि भाई सर ये कॉन्स्टिट्यूशन इस आस्पेक्ट में क्लियर नहीं, जरा बताना कि इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिमिलर, वो जो वॉइड शब्द है अंडर आर्टिकल 13, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इनफॉर्मल अमेंडमेंट कहते हैं उसको, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये वॉइड नहीं है, इसको ऐसे पढ़ो बेटे। तो वो काम सारा सुप्रीम कोर्ट का है।
तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के ऊपर भी इस चैनल पर लेक्चर है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट इन सेवरेबिलिटी. नाउ इन अ वेरी रीसेंट जजमेंट बजरंग डेड, चलो जी भैया गुजर गए वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी, वेरी रीसेंट जजमेंट के अंदर से मैं कोटेशन आपको दे रहा हूँ. वी से सो एज द राइट और टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दो नॉट अ फंडामेंटल राइट. ये बात तो मतलब दिस इज क्लियर एज नाइट एंड डे. लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी इट बेटर. ओके, क्लियर हो गया. लेकिन अभी आप कहेंगे मैं एग्जाम में क्या मार्क करके आऊँ यार, ये तो बहुत रामलीला चल रही है यहाँ पर, राम कहानी चल रही है. रुके रुके, वो कह रहे वो हिंदुस्तानी भाव वाली नहीं, मतलब थोड़ा रुको रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा जरा क्लियर करें कॉन्सेप्ट. कानून इतना आसान होता तो बात ही क्या थी. देन इन अ वेरी अगेन पिछले साल की जजमेंट है जिसके ऊपर आई थिंक क्लैट PG 2021 में प्रश्न भी आया. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स. ठीक है जी. अब ये क्या जजमेंट कह रही है, द राइट टू प्रॉपर्टी मे नॉट बी फंडामेंटल राइट एनी लॉन्गर बट इट इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ह्यूमन राइट. मतलब वो कोटेशन दे रहे हैं एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस कोर्ट इन विमला मैन अजित भाई पटेल वर्सेस वत्सला बहन अशोक भाई पटेल एंड अदर्स. अगर आप कोई LLB एंट्रेंस दे रहे हो कोई केस लॉ का नाम याद करने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट. हाँ, अगर आप जुडिशरी वेटर प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नोट्स निकालने हैं, प्लीज जरूर पॉज कर लीजिए, नोट्स निकाल लीजिए. Now the Supreme Court has declared it has to be a human right as well. मतलब it is already declared, they are saying in this judgment. Then Article 300 of the Constitution of India embodies the doctrine of eminent domain. CLAT PG में आया या AILT PG में आया, either of the दोनों एग्जाम में से ये आया है कि in which article is the doctrine of eminent domain enshrined. Anyone who's taken the LLM entrances this year will know this question, which comprises of 2 parts. We need not go there. ठीक है जी. तो अभी तक ये बात क्लियर हो गई. कॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है अभी भी. ठीक है जी. अभी सुनते चले जाइएगा, इतनी आसानी से कहानी अभी पूरी नहीं हुई. देन इन आंध्र प्रदेश, आई बिलीव आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट चेक्कागुरु मुरली मोहन वर्सेस द स्टेट ऑफ AP says however the right to acquire property continues to be a constitutional right, legal right and also a human right. अरे बाप रे बाप, वो कह रहे जी ये क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगल है ये बताओ. दोनों हैं. अब बताओ, अब बताइए कि क्या करेंगे. लेकिन अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, तो क्या मार्क करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो ब्रॉडर राइट है. मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास 6 7 10 जजमेंट्स हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल ही कहा गया है. ये लीगल कहाँ से? तो इसका ही मतलब ये थोड़े ना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो क्या वो लीगल राइट नहीं हो सकता. किसने आपको किसने बोला था आपको ये बात, किसने बोली? कहीं किसी किताब में लिखी नहीं, लिखी है. कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, लीगल भी एंड ह्यूमन राइट. अच्छा, ह्यूमन राइट भी है, ये भी एक MCQ अब सदा रहेगा लॉ एंट्रेंसेस के लिए. कहीं आपको एक जगह आ गया ह्यूमन राइट, अब आप कह रहे हैं यार प्लीज देखो, भावनाओं के साथ मत खेलो और ये मत पूछो कि भावना कौन है. ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अगर दोनों ऑप्शन हो गए तो मैं कौन सा मार्क करूंगा? कॉन्स्टिट्यूशनल. और कहीं ऑप्शन में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बोथ, तो जाके प्रॉब्लम होगी. फिर आप एग्जामिनर के पास ऑब्जेक्शन लगा सकने की हालत में है, बट आई बिलीव यहाँ से वो भी का काम हो जाएगा. बट फिर घूम के आते हैं सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ DB बसनेट वर्सेस द कलेक्टर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गैंगटॉक सिक्किम. We may note that even though rights in land are no more a fundamental right, still it remains a constitutional right under Article 300A. अच्छा जी. Then in Chairman इंदौर विकास प्राधिकरण, जजमेंट का नाम लिखा हुआ आप पॉज करके लिख सकते हैं, वर्सेस प्योर इंडस्ट्रियल कोक. It says the right of property is now considered to be not only a constitutional right but also a human right. और उसके साथ एक और ancillary detail आप नोट डाउन कर लीजिएगा. Under Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights dated, everyone has the right to own property alone as well as in association with others. कहीं ये प्रश्न आ गया कि ये आपको पूरा एक सेंटेंस दे दिया और ये पूछ लिया ये कहाँ दिया हुआ है? Article 17 of UDHR, obviously 948. LLM पे तो UDHR पूछते ही पूछते हैं, LLB एंट्रेंसेस में भी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके एज वेल. ठीक है जी. फिर इन टुकराम ये जोशी जी, ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अ स्टैट्यूटरी राइट but also a human right. Let us read this sentence again. ठीक है जी. The Supreme Court reiterated that in the case of Tukaram ji versus Maharashtra, right to, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा केस लॉ का नाम, right to property is now considered to be not only a constitutional or a statutory right. बोथ हैं, but also human right. लेकिन आप अपने नंबर उठाने के लिए क्या मार्क करके आएंगे? Constitutional. It's as simple as that.
ठीक है जी। और कहीं कहीं कोई एग्जामिनर चालू लोमड़ी बन के आपको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, फंडामेंटल राइट, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे इट कैन बी, द आंसर कैन बी बोथ ए एंड बी, बट कोई एग्जामिनर इतनी डेप्थ में जाएगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिर्फ मार्क करने वाले बहुत सारी ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर देंगे, और क्या पता वो प्रश्न पलट भी दे, क्योंकि देखिए इतनी रिसर्च कोई नहीं करता, वो पहली जजमेंट जो खोलेगा हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल, चलो चलो कॉन्स्टिट्यूशनल का, तो आप मार्क करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एडवांस्ड के लिए भी मैंने आपको फंडा बता दिया, बट 99% केस में आप कॉन्स्टिट्यूशनल ही मार्क करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिंपल इज दैट। इसमें इतनी लड़ाई क्यों है? लड़ाई 44th अमेंडमेंट में पैदा हुई, लड़ाई यहाँ पे पैदा होती है, इन लाइनों से पैदा होती है, और फिर जब कोई पूरी जब रिसर्च नहीं की जाती इन चीज़ों पे कि अरे सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल क्या रहा है, या हाई कोर्ट फिर बोल जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट एंड ऑल्सो ह्यूमन राइट, क्योंकि एक्चुअली में इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है, इसके ऊपर भी, इसको नेक्स्ट लेक्चर इस पर करेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उस पर भी सिग्निफिकेंट रिसर्च करनी पड़ती है, बट राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास शायद आर्टिकल 19 में कभी कह दी गई, कभी आर्टिकल 21 में कह दी गई, कभी अब तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी है। अब आप कहेंगे अरे यार आंसर बताओ, ऐसे नहीं होता आंसर, ऐसा है कि अगर एक एंट्रेंस में तो शायद आप 1-2 नंबर तुक्के से निकाल भी लेंगे, लेकिन आगे के लिए दिक्कत होगी, तो इसलिए लॉ को अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ता है ताकि हम आर्ग्यू आउट कर सकें। वकालत मेनली यही है कि पहले आप इतनी डिटेल में जाएंगे और फिर आप अपना केस आर्ग्यू आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एमसीक्यू में तो कहाँ ही आर्ग्यू करेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छा आगे मतलब एक कहते हैं ना जिसको ज्ञान हो, जिसकी वकालत अच्छी चले, या जिसने जज बनना हो, या कोई वो स्कॉलर अच्छा बने, तो इतने ही डेप्थ में आपको बैठ के बेसिकली काम करना है, और ये हो जाएगा काम जी। अच्छा ये तो मेरे पुराने इंटरनेशनल लॉ वाले नोट्स, ठीक है जी, ऑल राइट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली इट इज क्लियर, प्राइमरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, प्राइमरली, as well as a statutory right, as well as a human right declared by various judgments, but primarily the main heading remains to be a constitutional right. All right, wishing you all the best. Take care.